Good morning, everyone. Nifty is Nifty has gapped down. We'll be waiting for a proper confirmation. It is 24,100 P. If we get a proper confirmation, then we are going to make a trade on Nifty. You can see stocks as Bajaj Finance as well as Hindalco. Hindalco still not any call confirmation, but Bajaj Finance is a. We are seeing two calls. One is in Nifty the market has fallen, the Nifty has market fallen. So what we are doing, हम क्या कर रहे हैं 24,100 के पीई में कॉल देख रहे हैं और एज वेल एज एक स्टॉक्स में बजाज फाइनेंस में देख रहे हैं. दोनों में एक बाय का कॉल जनरेट हुआ है. देखते हैं जब कॉल कंफर्मेशन होता है तो प्रॉपर ट्रेड लेंगे, नहीं तो प्रॉपर वेट करेंगे. The first target will be 275. Same for Bajaj Finance. Bajaj Finance का Bajaj Finance अपना फर्स्ट टारगेट क्लियर कर लिया. If you see, Bajaj Finance has cleared his first target, 5 points first target. Bajaj Finance. You see in the Nifty 2400 100 P. All the major indexes are red, so we can expect a good move here also. 267 moving good, 267 266. All the major indexes are red. 269 moving good, 269 270. It is close to your first target. 275 is our first target. If 275 को ब्रेक करता है तो we can continue the trade for 286, the first target of the system. 273 almost cleared the target, almost cleared the target. 272.9, 273, 274, 275. First target has been clear. First target has been clear. The next target will be 286, which is the system's target. 286. We can expect a 290 move here. 286. It can surpass the 286 290 move. First target has been clear. 283 almost clear. 284 almost clear. 28 points in morning. More than 30 points it has given. Just in 5 minutes you can see. In 5 minutes it has cleared its target. 297. It has cleared that target also. 305. It has cleared 305. 309. All the first second target has been cleared. You can see 50 points in morning. Our live will be ending very soon because all the targets have been cleared. If you want to continue this, just trail the call. You can expect a 340 move. Expect a 340 move. It will be 322 because all the major indexes, if you see, Nifty Bank, Nifty IT, Nifty Metal, Nifty Pharma, all are red. It's giving us a proper confirmation that market will be in the put side only. मार्केट पुट साइड में ही रहेगा. रीजन क्या देखोगे तो अब सारे मेजर इंडेक्सेस अभी रेड है.
वेरी नाइस। Same for Bajaj Finance also. Bajaj Finance is also going good, also moving good. Bajaj Finance, it has cleared its first target, moving for the second target, which is 971. If you see, Bajaj Finance is also moving good. Bajaj Finance 970. It has almost cleared its second target. Bajaj Finance also moving good. Bajaj Finance, सारे के सारे मेजर इंडेक्सेस हमारे रेड है। सारे के सारे मेजर इंडेक्सेस जब हमारे रेड है तो हम पुट में ज़्यादा से ज़्यादा करके कंटिन्यू कर सकते हैं। हमें मोमेंटम का कैसे पता चल रहा है? क्योंकि निफ्टी 50 अगर देखोगे, निफ्टी 50 में बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं और सारे ही सेक्टर्स अगर आप देखोगे तो रेड साइड में है। मेजर सेक्टर्स, वेदर इट इज़ बैंक, मिड कैप, आईटी, मेटल, फार्मा। तो इस टूल को लगाने का मतलब यही था कि आपको प्रॉपर पता चल जाए कि कौन से मूवमेंट निफ्टी को कौन से सेक्टर कैसे हेल्प करते हैं। अभी देखोगे तो सारे के सारे सेक्टर रेड है, तो मतलब कि हम निफ्टी के पुट साइड को प्रॉपर कंटिन्यू करेंगे। और इसने अगर आप देखोगे तो 974 और हमने सेकंड कॉल दिया था बजाज फाइनेंस का, और बजाज फाइनेंस में प्रॉपर क्लियर कर रहा है सेकंड टारगेट 974। 2400 पी भी बहुत अच्छा मूव करेगा। अभी जस्ट अपने आप को रिटेस्ट कर रहा है, ये गारंटीड है कि 340 अभी टच करेगा। हमारा बाइंग प्राइस अगर आप देखोगे 258, स्टिल रनिंग ऑन 308, मोर देन 50 पॉइंट्स हमने मॉर्निंग में अभी गैदर किया। अभी हमारे क्लाइंट्स ने 50 पॉइंट्स है वो अभी प्रॉफिट अपना बुक किया। जो भी कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे क्लाइंट वो प्रॉपर कंटिन्यू करेंगे 340 के लिए भी। यू कैन सी मार्केट सस्टेन कर रहा है इधर। मार्केट जब भी सस्टेन करता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक बहुत बड़ा मूवमेंट अपसाइड में मिलने वाला, मतलब पी साइड में ये ब्लास्ट होगा अपसाइड में। रीजन क्या है? आप अगर देखोगे सारे मेजर इंडेक्सेस, वेदर इट इज निफ्टी मेटल, निफ्टी फार्मा, निफ्टी आईटी या निफ्टी बैंक, सबके सब रेड है। जब सबके सब रेड है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो गुड मूवमेंट एक अपसाइड। आप देखोगे अभी 313 315 कर रहा है। मैंने कहा था कि इसमें एक गुड मूवमेंट क्रिएट होगा, 340 तक ये टच करेगा। अपना फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट इसने क्लियर किया है। 315 पे भी ट्रेड कर रहा है, एक्सपेक्टेड है। रीजन क्या, अगर इसको फॉल होना होता तो वो यहीं से फॉल हो जाता, बट ये यहाँ सस्टेन किया है 319 320। हमारा सॉफ्टवेयर टारगेट 338, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 340 टच करेगा। स्टिल मूविंग गुड, 322 321 है, एक्सपेक्टेड है 341 जाने का, क्योंकि आप देख पाओगे ये हमारा जो टूल है सारे मेजर इंडेक्सेस रेड है, ये सपोर्ट करेगा। मार्केट यहाँ सस्टेन किया है तो एक सही मार्केट, एक अपसाइड मार्केट, कभी भी मार्केट एक बार में अपसाइड नहीं जाता, वो अपने आप को सस्टेन करता है, अपने आप को रीटेस्ट करता है। जो ट्रेड कर रहे हैं बहुत सालों से, वो एक्सपीरियंस्ड है, उन्हें पता है कि मार्केट एक लेवल पे सस्टेन करता है, फिर वहाँ से क्या होता है वो अपने आप को शूटअप करता है। रीज़न क्या, वो अपने प्राइस को टेस्ट कर रहा है। तो अपने लाइफ को यहाँ एंड करेंगे, क्योंकि अब देखोगे हमारे दोनों का दोनों टारगेट्स क्लियर कर लिया है। टारगेट ने फर्स्ट और सेकंड दोनों टारगेट क्लियर है। मार्केट एक्सपेक्टेड है अपसाइड, ये पी साइड ही जाने वाला है, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ मार्केट अपने आप को सस्टेन कर रहा है। आफ्टर सस्टेनिंग क्या करेगा, मार्केट फिर से अपसाइड में मूव करेगा। पर अभी क्या, मार्केट अपने आप को रिटेस्ट कर रहा है, क्योंकि एक बार में कभी वो नहीं जाता है। जैसे कल सी को मिला था, बट आज पी में इन 5 मिनट्स मोर देन 50 पॉइंट्स मिल चुका है, तो बहुत होते हैं। और मॉर्निंग में हमने बहुत इजीली काम किया। हमने देखा कि निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी में आज एक फॉल हुआ। फर्स्ट कैंडल पे क्या था, एक सेल का कॉल था। तो हमारा क्या रूल है कि इफ सेल का कॉल है तो हम प्रॉपर पी साइड में वर्क कर लेते हैं। इसके ब्रेकडाउन में हमने क्या किया, 24,100 के पी में काम कर लिया। और यहाँ देखोगे 24,100 के फर्स्ट कैंडल पे क्या था, एक बाई का कॉल था। इस बाई के कॉल को हमने क्या किया, आप देखोगे यहाँ हमारा एक डैशबोर्ड है जो ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जाता है जब भी कैंडल फॉर्म होता है। ये देखो, बाई अबव 258, फर्स्ट टारगेट वाज 286, सेकंड टारगेट 309, थर्ड टारगेट वाज 338। अब देखोगे यहाँ जब ये फर्स्ट कैंडल पे था कोई भी था, बट जब ये कैंडल को ब्रेकआउट किया, हमारा रूल है कि विदाउट ब्रेकआउट हम एंट्री नहीं लेते। जब ब्रेकआउट प्रॉपर हो रहा था, एक अपसाइड मूव दिख रहा था, तब वहाँ हमने एंट्री लिया। 259 260 में हमने एंट्री लिया। फर्स्ट टारगेट वाज 286, मतलब 28 पॉइंट्स का यहाँ प्रॉफिट।
सेकेंड टारगेट हमारा 309 था, आप देख पाओगे सेकेंड टारगेट हमारा 309 था, सेकेंड टारगेट भी इसने क्लियर किया, एक्सपेक्टेड था। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, यहाँ मार्केट सस्टेन कर रहा है, जो मार्केट गिरने वाला होता है वो एक बार में गिरता है, बट यहाँ क्या होगा, मार्केट सस्टेन कर रहा है। सारे के सारे मेजर इंडेक्सेस आप देख पाओगे यहाँ रेड है। इस टूल का मतलब क्या है, इस टूल में क्या होता है कि निफ्टी 50 में कोई एक सेक्टर के स्टॉक्स नहीं है, निफ्टी 50 में बहुत सारे सेक्टर्स के स्टॉक्स है। तो बहुत सारे जब सेक्टर्स के स्टॉक्स है तो वो क्या करते हैं, निफ्टी 50 को सपोर्ट करते हैं। तो आपको क्या देखना होता है, आपको ऐसा एक टूल चाहिए जिसमें कि आपको पता हो कि निफ्टी बैंक में भी क्या हो रहा है, निफ्टी आईटी में भी क्या हो रहा है, निफ्टी मेटल में भी क्या हो रहा है, निफ्टी फार्मा भी क्या हो रहा है। तो जितने भी मेजर इंडेक्सेस अगर मेरे रेड है तो मुझे पता है कि मार्केट में क्या एक पुट के साइड है। तभी देखो यहाँ मार्केट सस्टेन किया और अभी क्या ये 340 तक भी जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने भी मेजर इंडेक्सेस है सब रेड है। तो मैं यही बोलता हूँ कि अगर आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम है तो आप सही तरीके से एक कॉल को डिटेक्ट कर पाओगे, सही कॉल में एंट्री लेके अपना काम कर सकोगे। बहुत ही ब्यूटीफुली हमने काम किया। मॉर्निंग में 2 कॉल दिया था, एक बजाज फाइनेंस में कॉल दिया जिसके सेकंड टारगेट फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट दोनों का दोनों क्लियर हुआ। 2400 के पी में भी फर्स्ट और सेकंड टारगेट क्लियर हुआ, मोर देन सेकंड टारगेट था। अभी भी मार्केट सस्टेन कर रहा है, यहाँ से मार्केट अपसाइड जाएगा 338, इसका थर्ड टारगेट है 24,100 पी। मार्केट यहाँ अपने आप को सस्टेन कर रहा है, मार्केट अपने आप को रीटेस्ट किया है क्योंकि यहाँ से मार्केट फिर से शूटअप करेगा। देखो अभी जो भी हमारे जो ट्रेल नहीं करते ट्रेडर्स वो क्या किए होंगे, फर्स्ट टारगेट में निकल गए होंगे, सेकंड टारगेट में एग्जिट हो गए होंगे। बट जो ट्रेल करते हैं वो क्या करते हैं, हमारा जब बाइंग प्राइस 258 था, हमारा जो स्टॉप लॉस था 255 या 250 था, उसको क्या करेंगे अब हम 265 पे रख देंगे। तो ऐसे करके क्या अपने स्टॉप लॉस को बाइंग प्राइस के अबव रखते रहेंगे। तो उससे क्या होता है कि जो भी हम प्रॉफिट कर रहे हैं उसको विड्रॉ कर पाएंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लर्निंग है जो आपको सब नहीं दे सकता, क्योंकि जो ट्रेड नहीं करते हैं वो उन्हें पता ही नहीं है। तो इसलिए हम हर समय कहते हैं कि आप ऐसे जगह ट्रेड लो, एक ऐसा सिस्टम लो जो आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जा रहा है, प्लस एज वेल एज एक एक्यूरेट सॉफ्टवेयर लो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे के वीडियो में। नेक्स्ट डे मिलते हैं, मंडे हमें ट्रेड होगा क्योंकि कल फ्राइडे है। फ्राइडे इज़ हॉलीडे क्योंकि लेबर डे का हॉलीडे है महाराष्ट्र में, एनएससी बीएससी दोनों ही बंद है। तो इसलिए अब तो ट्रेड होगा मंडे को, एंड मंडे इज़ वोटिंग। वोटिंग के दिन देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशन है वोटिंग के दिन एक गुड अमाउंट से मूवमेंट है। अगर बीजेपी जीतता है तो बहुत ही सी साइड में एक अच्छा मूवमेंट मिल जाएगा, बट इफ बीजेपी डजेंट स्कोर वेल तब क्या एक मार्केट रेंज बाउंड या पी साइड में मूव कर सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे की वीडियो में। चलिए मार्केट एक्सपेक्टेड है थर्ड टारगेट के लिए भी जाएगा, मोर देन 340 करेगा, क्योंकि अगर मार्केट को फॉल होना होता है वो मार्केट यहाँ से ही फॉल हो जाता है। मार्केट अपने आप को रेजिस्ट कर रहा है, यहाँ मार्केट अपने आप को सस्टेन कर रहा है, यहाँ से मार्केट अपने आप को शूटअप करेगा अपसाइड। आप देख पाओगे निफ्टी फार्मा भी ग्रीन साइड आ रहा है, बट ये एक्सपेक्टेड है। निफ्टी फार्मा भी कुछ देर में क्या होगा, वो रेड हो जाएगा और यहाँ से मार्केट अपसाइड ही मूव करेगा। चलिए